आज के ज़माने में एक दौड़ शुरू हो गई है, एक कंपटीशन. वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी फेमस, पॉपुलर, understood in a positive way. Once again, a very warm welcome to all my friends and viewers. I have more than 1,000 friends on Facebook. The other says, oh, I have 500 followers on Instagram. The next person says, do you know I have a YouTube channel and I have more than 50,000 subscribers. People love me. People want to be with me. This is the hunger that has grabbed the society. मुझसे अगर आप पूछे, अच्छी बात है. आप सब लोग यही चाहते होंगे कि आपको भी लोग लाइक करें. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि आपकी अच्छी इमेज सब तक उसी तरीके से पहुंचे जिस तरह से आप चाहते हैं? नहीं. यही है हमारी आज की करियर काउंसलिंग का टॉपिक, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट. What do you mean by a public relations specialist? That person who has all the required skills, talents, knowledge, information, and qualification to build a positive, productive, impactful image. Either it is of a person or an organization. Because building an image is not everybody's cup of tea. Now comes the question, what does a PR specialist, mark the word specialist, what does he do? What is the job description? As I have been doing all my sessions on public speaking, so it goes without saying that PR specialist, the first and foremost requirement for this job as well is you have to be very good at public speaking, good communication skills. So other than all these basic requirements or qualities, what else one needs if he or she wants to be a PR specialist? What job in details is to be done has been mentioned, has been spoken about in the session I am taking with you. So let's start. A PR specialist is someone responsible for communicating with the public on behalf of a company, जैसे कि मैंने आपसे बताया, individual, government, organization, or it could be even a politician. People who are in public eye, they have to have a very good perception. My dear friends, ये दुनिया जो है ना पूरी परसेप्शन पे चलती है. परसेप्शन मीन्स धारणा. आपके बारे में कोई कैसा सोचता है ये बहुत ज़रूरी है. मे बी आप वो नहीं भी हैं, लेकिन आपको एक परसेप्शन देना है समाज को, सोसाइटी को, स्पेशली व्हेन यू आर इन पब्लिक आई, कि आप एक प्रोडक्टिव, यूजफुल फॉर द सोसाइटी, जिस फील्ड में आप हैं, मैं उस फील्ड की बात कर रही हूँ. अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में आप यूजफुल हैं, आप ही सही नेता हैं. अगर आप किसी कंपनी को चलाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, उसकी इमेज बिल्डिंग, ये सारा काम एक पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट करता है. नाउ what else do they do? They usually communicate their or their employers or clients' message to the public by the means of media. A media can be of any sort. It could be written, it could be electronic media, it could be print media. The list is long. But उनका काम होता है उनको जिसने हायर किया है. It could be a person, it could be an individual, it could be an organization, it could be a company. जिसने भी एक PR स्पेशलिस्ट को हायर किया है, मान के चलिए कि वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की जो सेलिंग पॉइंट्स हैं, उनको सोसाइटी तक पहुंचाए एक बहुत ही प्रभावशाली फैशन में, बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप में.
Now, what else do? They write content for press releases, direct public relations programs, and also raise funds. अपनी क्लाइंट की इमेज सेल करके, इमेज का मतलब ऑब्वियसली अच्छी इमेज सेल करके, उसके बदले में एक रेपुटेशन बिल्ड करना, और उस रेपुटेशन से, उस परसेप्शन से यहाँ तक कि पैसा भी रेज किया जाता है, फंड्स भी रेज किए जाते हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि फंड रेज होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि अपने काम को करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? जब आपका प्रोपेगेंडा होगा, आपको लोग जानेंगे। कौन आपको ये मैसेज पहुंचाएगा? प्रॉपर एक टीम होती है जिसमें कि एक लीडिंग पीआर स्पेशलिस्ट होता है, उसके जूनियर्स होते हैं, उसके एसोसिएट्स होते हैं। इट्स अ वास्ट करियर विच कैन ओनली बी टेकन अप इफ यू आर गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. Remember one thing, this is a job you can do independently. You can become financially independent, self-reliant. After all, the entire purpose of my session always is to make my young viewers especially to realize their worth. उनकी काबिलियत वो समझें और बगैर निराश हुए, बगैर हताश हुए ये जाने कि उनके पास अगर नेचुरल स्किल ऑफ स्पीकिंग है तो वो उसी बूते पे अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. राइट, मूविंग ऑन. और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो एक पीआर स्पेशलिस्ट के संग एसोसिएटेड होते हैं. राइटिंग प्रेस रिलीज एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द मीडिया. मीडिया आजकल मीडिया के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ये हम सब देखते हैं. अच्छा बुरा किसी भी लेवल तक जाने को इंसान तैयार है अगर उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है. मैं यहाँ ये नहीं प्रमोट कर रही हूँ कि आप भी वही करिए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ public image and perception in the society. And media plays an integral role in spreading your image, in either spreading a good image or tarnishing or tainting your good image. So media is something that you cannot ignore. Now, responding to the client's requests for information from the media. अगर आपके क्लाइंट ने आपसे ये कहा है कि देखो मुझे ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक कैंपेन चलाना है, इसमें आप फेस बनेंगे मेरी कंपनी का या मेरा फॉर दैट मैटर. अगर वो क्लाइंट आपका इंडिविजुअल है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, दे हैव पीआर स्पेशलिस्ट. Everybody hires a PR manager or a PR agent who gives out all the necessary information through media to the public, and they bring business to those celebrities depending on the field that celebrity comes from. Drafting speeches and arranging interviews. PR specialist का काम स्पीच ड्राफ्ट करना भी होता है. आपका क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब अगेन सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. उनके लिए यहाँ तक कि स्पीच ड्राफ्टिंग भी, आप क्या बोलेंगे, कितनी देर की आपकी स्पीच होगी, क्या कंटेंट होगा, दैट ऑल्सो इज टेकन केयर बाय द पीआर specialist. Even busy people, celebrities and heads of the organizations, they are asked to give interviews. So for those interviews also one needs to fix a time, and that time is also decided keeping in mind the comfort of that celebrity. It's decided by the PR specialist. Not everybody can directly approach that celebrity. हम तुरंत किसी के पास जाकर के सीधा ये कहें कि आपके हेड से मैं मिलवा दीजिए. You have to go through the proper channel, and that channel here is PR specialist. Carrying out fundraising activities for an organization. As I said earlier, fundraise करना भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है कई सारी organizations का, especially those organizations which run on charity, which run on funds. So carrying on those activities which would bring in the fund, that is also a responsibility of a PR specialist. Now, what is the eligibility to become a PR specialist? What all are the requirements
that you need to possess so that you are a complete, perfect fit to be a PR specialist. Now, what do you need? One has to appear for an entrance test conducted by the various institutes for diploma as well as PG diploma courses in PR. आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इसके लिए भी, इस पर्टिकुलर करियर के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा के लेवल्स का, जिसमें कि आपको इस करियर से रिलेटेड पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? ड्यूरेशन ऑफ दीज कोर्सेज इज 1 year. And there are also a few short-term courses that one can enroll in. आपके पास कितना टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 year का कोर्स करना चाहते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप इस करियर में इंटरेस्टेड हैं। मेरी तो ये राय है एज अ करियर कोच कि इस करियर के बारे में आप लोग ज़रूर सोचें, क्योंकि ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव और प्रोग्रेसिंग करियर है। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सपने कौन नहीं देखता, कौन नहीं बड़े शहरों में काम करना चाहता। बड़े शहरों की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और big organizations are mostly found in big cities, and people from smaller towns, they aspire to go to bigger cities to have better opportunities, better job opportunities. The problem is, the cap is, they are not aware how and where to go, what to become. So this session is very useful for those people who are completely clueless about their talents and skills. They know that they have skills and talent of good communication skills, good public speaking skills, but they are not aware where to use those skills. Moving on, eligibility to become a PR specialist. आगे बढ़ते हुए, one can choose to work directly after pursuing these courses or enroll for an MA and then work. जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले भी कि इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। आपकी एक बेसिक एजुकेशन होने के बाद आप अगर थोड़ा सा उसको स्पीड अप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं आफ्टर परसुइंग दीज कोर्सेज, या फिर आप इसी कोर्स को कंटिन्यू करते हुए, इसी फील्ड को राधा कंटिन्यू करते हुए आप MA के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। फीस क्या हो सकती है? बहुत नेचुरल है ना ये जानना, ये सोचना, ये सवाल उठना मन में कि इसकी फीस क्या होगी, हमारे जेब से कितना पैसा जाएगा। आपको पापा मम्मी को कन्विंस करना पड़ा तो क्या कहेंगे आप अपने पेरेंट्स को कि मुझे कितना पैसा चाहिए। अगर आप खुद से ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं तो आपको अपनी पॉकेट से कितना इस कोर्स के लिए देना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग अमाउंट फॉर यू, नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स। इट कुड बी in the range of somewhere around 30,000 to 8 lakhs. It all depends on your spending capacity. I would also say that think about this career as an opportunity to showcase your talent, your skill. अब what are the job roles? आप PR specialist बनना चाहते हैं, उसमें भी अलग अलग job roles होते हैं। उसी कैटेगरी में PR specialist की ही कैटेगरी में different job roles are there which you can think of. The first is digital media specialist. Digital media specialists, they are involved in creating and managing digital related projects for the organization. They maintain and handle web related media and also update existing resources. Digital, आजकल हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, उनको कैरी आउट करने का काम डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट करता है। मूविंग ऑन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस एंड मार्केटिंग मैनेजर्स. Advertising and marketing managers plan programs and work with sales agents and art director. Advertising plays a very, very important role in the lives of celebrities, in the lives of manufacturing and production companies. क्योंकि वो जो भी बना रहे हैं, वो जो भी बेचना चाहते हैं, उसके लिए एक मीडियम होना, एक प्रॉपर चैनल होना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे रोल आता है
प्रमोशन करने का, वहीं पे ज़रूरत पड़ती है एडवर्टाइजिंग की। इसको करने के लिए पीपल डू हायर PR स्पेशलिस्ट और आई कैन से एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड मार्केटिंग मैनेजर्स। नाउ ये और क्या काम करते हैं? दे वर्क विद द डिपार्टमेंट हेड्स और स्टाफ टू डिस्कस बजट्स, मार्केटिंग प्लान्स एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया। आपने ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जो कि एक सीरीज में चलते हैं। उनका एक बजटिंग होती है, उनकी शूटिंग सेलिब्रिटी को ही एक मॉडल लेकर के की जाती है, और आप देखेंगे कि हर एक महीने बाद प्रोडक्ट वही है, सेलिब्रिटी वही है, लेकिन एडवर्टीजमेंट चेंज हो गया है। तो वो सारी प्लानिंग, वो सारी स्टोरी बिल्डिंग कि कब कौन सा एडवर्टीजमेंट जाएगा, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट मंथ जाएगा, यहाँ तक कि जो एडवर्टीजमेंट्स शुरुआत में आते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं। फिर जब लोगों के मन में वो एडवर्टीजमेंट्स बैठ जाते हैं, तब उन्हीं एडवर्टीजमेंट्स को कट शॉर्ट करके, छोटा करके दोबारा से नेक्स्ट मंथ से टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजाइजिंग है, बजटिंग और पूरा मार्केट प्लान, किस मार्केट को टारगेट करना है, कौन से एज ग्रुप को, कौन से फाइनेंशियल ग्रुप को, किस किस तबके को, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें अपना टारगेट ऑडियंस बनाना है, ये सारी स्ट्रैटेजाइजिंग इज डन बाय एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड मार्केटिंग मैनेजर्स। पब्लिसिस्ट, ये वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। पब्लिसिस्ट शब्द में ही पब्लिसिटी छिपी हुई है। यही तो काम है एक पब्लिसिस्ट का। आर इन चार्ज ऑफ कमिंग अप विथ पब्लिसिटी कैंपेन्स एंड फाइंडिंग द बेस्ट वेज फॉर क्लाइंट्स टू प्रमोट देयर ब्रांड्स टू द कंज्यूमर्स एंड द मीडिया। ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड इमेज बिल्डिंग, ब्रांड की पब्लिसिटी करना, फिर से किन लोगों तक ये ब्रांड पहुंचना चाहिए। बच्चों का प्रोडक्ट है तो बच्चों को टारगेट किया जाता है, यंग एज का है तो यंग एज इज द टारगेट ऑडियंस। डिवाइडिंग द एंटायर सोसाइटी और एक इमेज बिल्डिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंस रखती है। हर कोई जानता है एडवर्टाइजिंग की कीमत, हर कोई जानता है पब्लिसिटी की कीमत, लेकिन क्या हर कोई कर पाता है? वहीं पे आप काम आएंगे। आप, जिससे मेरा मतलब है जो इस सेशन को देख करके इंस्पायर होंगे, अवेयर होंगे कि हाँ ये काम मेरे मतलब का है, इस काम को मैं बखूबी सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नाउ उसके बाद कॉपीराइटर। कॉपीराइटर क्या होता है? कॉपीराइटर्स राइट पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग मटेरियल, कंटेंट लिखते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। देखिए ये सारा काम आप किसी के लिए कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये काम आप किसी कंपनी से कंटिन्यूसली जुड़े बगैर भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। यही मेरा मकसद है। मैं बार बार इस चीज़ को कहना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मुझे अपना देश चाहिए जहाँ पे हमारे सारे यूथ, सारी युवा पीढ़ी एम्प्लॉयड हो, सेल्फ रिलायंट हो और फ्यूचर रेडी हो। द मटीरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज एंड ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स का ही तो ज़माना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ ब्लॉगर और एस्पायरिंग टू बी वन, सो वाई नॉट क्रिएट कॉन्टेंट फॉर देम, इजंट इट? हम कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर PR स्पेशलिस्ट। कहाँ कहाँ से वो मौके आपको मिलेंगे, वो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सकता है। बिजनेस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे वास्ट तो यही है। जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हायर, I would not say one or two, they have an entire team of PR. उनका पूरा एक डिपार्टमेंट रन करता है जो उस कंपनी को या उस पार्टी को प्रमोट करता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आज के ज़माने में टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या जो प्रोपेगेंडाज होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आपसे छिपे नहीं हैं। आप भी जानते हैं कि किस पार्टी का PR दूसरी पार्टी से बेहतरीन है।
एजुकेशनल सर्विसेज, यस, आपको मैं बिना नाम लिए बता सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रमोट करवाती हैं अपनी ब्रांड को, अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट को थ्रू दीज PR स्पेशलिस्ट. एवरीथिंग इज स्ट्रेटेजाइज्ड. हमारी आंखों के सामने जो आता है ना, जो एक इमेज बनती है, एक परसेप्शन बनता है, उसके पीछे कितनों का हाथ होता है, ये आपको आज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. और उनमें से एक हाथ आपका भी हो सकता है, आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस फील्ड में. एडवर्टाइजिंग, PR एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, अपनी इमेज बिल्ड करवानी हो, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करानी हो, ब्रांड इमेज बनवानी हो, ये सारे फील्ड्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं सक्सेसफुली. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. एक ज़माना था जब खाली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लगता था कि उनको ज़रूरत है प्रमोशन की, लेकिन आज के ज़माने में आप देखिएगा अपने आसपास, इवन द गवर्नमेंट हैज़ understood the importance of publicity and PR building, जिसके लिए they of course need people like you interested in public relations management. Top recruiting companies for PR specialist. मेरा काम अधूरा रह जाएगा अगर आपको मैं ये इंफॉर्मेशन ना दूं. मुझे आपकी हैंड होल्डिंग करनी है, आपको ये भी बताना है कि ऐसे कौन सी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो PR स्पेशलिस्ट को हायर करती हैं. द लिस्ट इज लॉन्ग. आई हैव ओनली शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू टॉप ones. You can always go on and find out the other names which are not being discussed in today's session. I always use the word discuss if you notice. Why? Because I know sitting in the comforts of your home, you're actually parallelly, as I speak, have started thinking on those lines. So we are there, we are connected to each other. So what if it's only virtual? Hardly matters. Now, some of the top recruiting companies for PR specialists are Edelman India, AdFactors, Genesis Burson Marsteller, Perfect Relations, Avion Media, MSL, ARM Worldwide, Text 100 India, Value 360, The Practice, APCO Worldwide India. As I said earlier, these are just a few names. I would request you to find out many such companies who are hiring people who are good at public speaking and are interested to become a PR specialist. Obvious question that must have by now popped up in your mind is or would be, what is the salary package? What is the money I would earn? How much amount of money I'm going to get while I'm working on the suggested profile? So again, I always mention the word average in my sessions so that my lovely viewers don't get stuck up on a particular figure. Right? So the average pay for a PR specialist when he or she starts out means शुरुआत ही करता है as a beginner, after doing that necessary, after pursuing that necessary course that I had mentioned, approximately is rupees 4 lakhs and above. And the salary for a mid-career PR, mid-career मतलब जिसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अक्वायर कर लिया है, से आई वुड से समवेयर बिटवीन 3 to 5 years वुड मीन मिड करियर. तो उसके लिए जो एक एवरेज सैलरी निकल के आती है, दैट इज समवेयर अबव 7 lakhs, 7.45 lakhs, right? So this is the average figure that I have shared with you. However, this is not end of the world. As you grow in your career, as you gain experience and expertise, you would definitely get to know how much more you can earn, isn't it? Then, books and study material to become a PR specialist.
कौन सी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी अदर दैन द कोर्स दैट यू हैव परस्यूड टू बी अ PR स्पेशलिस्ट. Some of the books I would only mention here. The New Rules of Marketing and PR. You know, how to use social media, online video, mobile applications, blogs, new releases, and viral marketing to research buyers directly. इस बुक में आपको इन सारे इश्यूज पे गाइडेंस और नॉलेज मिलेगी. दिस बुक इज रिटन बाय डेविड मीरमैन स्कॉट. द PR मास्टर क्लास, how to develop a public relations strategy that works. This is written by Alex Singleton. Then Above the Noise, Creating Trust, Value and Reputation Online Using Basic Digital PR by Carrie Morgan. Everybody Writes, Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content by Anne Handley. How to Come No One Knows About Us. How come no one knows about us? The name of the book. The Ultimate Public Relations Guide by Robert Dake. The New Rules of Marketing and PR by David Meerman Scott again. So these are the names of a few books which I would recommend if you are getting interested in pursuing this career. As I always say in my every session that I am a person who would not only give out a delusionary impression to my viewers. It is my job, it is my responsibility as your career coach to tell you all the pros and cons, all the pluses and the minuses, all the positives and the negatives. If I'm telling you the pros, it's my responsibility to tell you the flip side also, the negatives also. And right now I'm doing just that. So let's start with the pros. What are the advantages of being a PR specialist? A PR specialist has the ability to improve a business's image or reputation, especially in the event of a controversy or something of that same nature. कोई भी जब कंट्रोवर्सी हिट करती है किसी सेलिब्रिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस हाउस को, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जिस इंसान से जुड़ी हुई है वो कंट्रोवर्सी, वो प्रॉब्लम, वो खुद आकर के एड्रेस करे, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है. सो वहाँ पे रोल आता है PR स्पेशलिस्ट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को जिसके बारे में वो कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है. वो कंट्रोवर्सी सच्ची भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, लेकिन इमेज खराब ना हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की, आपके क्लाइंट की इमेज खराब ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी PR स्पेशलिस्ट की ही होती है. सो इमेज बिल्डिंग इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल when you are a PR specialist. It is a career that pays well. बहुत अच्छी इनकम होती है इस करियर में. The money aspect is very good. The financial part is something that you should feel attracted towards. It's all about building good relations with media and working with them for a client. मीडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना, हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे ही पॉपुलर होके खुश हो जाते हैं, नहीं, इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर परसेप्शन बिल्ड करना. आई वुड नॉट stop mentioning this word in today's session because this session is all about building perception. So you have to have very good relations with your media associates, जिनके जरिए, जिनके थ्रू आप इमेज बिल्डिंग करेंगे. All the hard work that they put in can translate to sales, and the results of that for the client and the PR specialist both is a great thing. जब एक PR स्पेशलिस्ट अपना काम बखूबी करता है तो उसका जो ट्रांसलेशन होता है, उसका जो आउटकम होता है, हमेशा गुड सेल्स में होता है. सेल्स वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी को भी आप प्रमोट करते हैं तो उसको आपकी वजह से जब ज़्यादा काम मिलने लग जाता है, ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उसका काम बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है, आपका
जो एक कहते हैं ना, एक सीवी का एक वजन होता है, एक रेज्यूमे की एक वेटेज होती है, वो बढ़ती है. पीपल स्टार्ट नोइंग यू एंड दे स्टार्ट asking for you. They call you, they invite you to be a part of their organization. One gets to write, to be creative, and work with people from different backgrounds, clients, journalists, consumers. बहुत वाइड रेंज हो जाती है आपके क्लाइंट्स की. अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग एरियाज, डिपार्टमेंट से आपके एसोसिएशन बनते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आपका जो क्लाइंटेल है वो वाइडन होता है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज समथिंग वन शुड फील प्राउड ऑफ कि आपकी इतनी एक रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग मार्केट में बन चुकी है. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. The task of a PR specialist is to act as a storyteller, to make people understand something new or give some pertinent information. मैं आपसे जब एडवर्टीजमेंट की बात करी थी तो मैंने स्टोरी की बात करी थी. पूरी एक स्टोरी राइटिंग होती है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होती है. किस बात को किस तरह से मार्केट में, पब्लिक में, सोसाइटी में पहुंचाना है, किन फैक्ट्स को हाईलाइट करना है और किन बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए, थोड़ा सा कंसील करते हुए ही प्रेजेंट करना है. ये भी एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जो एक पीआर स्पेशलिस्ट को बेहतरीन तरीके से आता है. अंडरस्टूड? Now, there are a lot of fun events, parties, seminars that a PR specialist gets to be a part of. अगर आप आउटगोइंग पर्सनालिटी हैं, अगर आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, लोगों के संग उठना बैठना बहुत पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेंगे ऑन डेली बेसिस. लॉट ऑफ फन इज इन्वॉल्व इन दिस. They get to meet new people and the job also includes traveling. नए लोगों से मिलना आपको पसंद है, you are a people's person, you want to meet new people, have a vast circle of associates, acquaintances. Please think about this career. It's a fun job to do. और क्या प्रोज हो सकते हैं, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? PR specialist gets to work with the entrepreneurs, doctors, and other such people and have the ability to make a difference in someone's life. I really love this part. If you are able to make a difference in someone's life, and that difference is productive, that difference is positive, that difference adds to the success story of that person for whom you're working, I think that is the most rewarding part of it. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वजह से, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव एडिशन होता है. I'm sure many of you, or rather I can say confidently, all of you would agree with me on this point. People who are doing good work can be featured on television, wow, radio and other media, and the PR specialists are the ones who play an active role in this. As a PR specialist, many a times you are expected to represent a company, organization, business house, or a celebrity or an individual. आप फेस करते हैं टीवी, जो कि एक ग्लैमरस फैक्टर होता है इस जॉब का, और आपके कैमरा फेस करने के पीछे भी कितना अच्छा लगेगा, एक और पीआर का ही इन्वॉल्वमेंट होगा. कॉन्स, नेगेटिव्स. चलिए, सब कुछ वाइट हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, ये तो ज़रूरी नहीं है. देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे एंड नॉट जस्ट इन दिस जॉब. ग्रेस हर जगह होते हैं, पर उनसे फाइट करके सक्सेसफुली आगे निकल जाना ही तो विनर की क्वालिटी होती है, isn't it? So what are the cons? PR specialists are always working in some capacity or the other, even on their day offs. They can't really shut off. ये थोड़ा सा सबके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. वो इंसान जो संडेज में बिलीव करता है, वीकेंड्स में बिलीव करता है, जो कि मैक्सिमम लोग करते भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक डाउनर हो सकता है. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्रिएटिव एनहांसमेंट हो रहा है आपका, तो कई बार हम लोग वीकेंड्स को भी सैक्रिफाइस खुशी खुशी कर जाते हैं.
ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका किस इंडिविजुअल के संग एसोसिएशन है। जॉब अच्छा है तो संडेज डोंट मैटर, वीकेंड्स डोंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज जॉब satisfaction. A lot of companies don't fully understand PR and the challenges one has to face. हाँ, आज के ज़माने में PR स्पेशलिस्ट क्या होता है, PR मैनेजिंग क्या होती है, लोग जानने समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या ऐसे लोग आपको हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में मिल जाएंगे जिसको इम्पोर्टेंस ऑफ PR अभी तक भी कंप्लीटली नहीं पता है। They do not know the value of a PR specialist. तो कभी कभी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आप आ सकते हैं when you are expected to convince the other person why are you important. A PR specialist attends too many events and a lot of workload. कभी कभी 9 to 5 के परे भी हमें काम करना पड़ता है, ज़्यादातर करना पड़ता है बल्कि मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें लॉन्ग आवर्स डिज़ाइनिंग में, स्ट्रक्चरिंग में, स्क्रिप्टिंग में, स्ट्रैटेजाइजिंग में यू टेंड टू फॉरगेट टाइम, और डेडलाइंस होती हैं इसमें। आपको कल ही के कल प्रेस रिलीज करनी है, मीडिया से मुखातिब होना है, यू हैव टू हैव एन इंटरव्यू कंडक्टेड, बहुत सारी चीज़ें एक बहुत ही टाइट शेड्यूल में मैनेज करनी होती हैं, तो कभी कभी दिन और रात का फ़र्क ब्लर हो जाता है। बट एज आई सेड, इंटरेस्टिंग जॉब है और ये फ़र्क हमें उतना बुरा नहीं लगता है अगर आपको ये जॉब अपील करता है और आप इसमें खुशी देखते हैं अपनी। तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट वन ought to have thick skin as clients tend to rely on the PR specialist for directions. ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है। सेंसिटिव से ज़्यादा मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको अपनी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, एक जो विल पावर है, एक एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया हाउसेस। तो वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, very very resilient, very very determined that if anything which is negative is thrown towards you, thrown at you, you need to take those brickbats. You need to face those hitting, challenging, piercing questions and sarcasm to a large extent, and still stay calm and cool, because आपके ऊपर भरोसा करके आपके पीछे आपका क्लाइंट खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि आप उसको ईजीली कंफर्टेबली रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रोवर्सी में से बाहर निकाल ले जाएंगे और एक अच्छी पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग भी आप करेंगे। इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड फुल ऑफ एम्बिशियस पीपल एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू स्टैंड आउट। आज के ज़माने में एवरीबडी इज डेवलपिंग द स्किल ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग। एस्पिरेंट्स इस फील्ड में जाने के लिए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो एक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पीपल आर हायरिंग मोर एंड मोर PR स्पेशलिस्ट टू रिप्रेजेंट देम। तो यस, अपने आप को भीड़ में साबित करना, इस्टेब्लिश करना, अपनी एक जगह बनाना इज अ लिटिल चैलेंजिंग। हाउएवर, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर मैच्योर इनफ, strong enough mentally and psychologically to face any sort of challenges. I have full faith in India's youth. Colleges. Top colleges to pursue career as a specialist. Pros and cons समझाने के बाद you also should know a few names of those colleges. Top colleges के नाम ही मैं आपको बता रही हूँ. However, as I said earlier, this is not the end of the list. So, the colleges are National School of Drama, Delhi, Film and Television Institute of India, that is in Pune, Annapurna International School of Film and Media, Hyderabad, Indian Institute of Mass Communication, Delhi, Xavier Institute of Communications, Mumbai, Asian College of Journalism, Chennai, Garden City University, Bangalore, Whistling Woods International, Mumbai, बहुत फेमस नाम है ये, Z Institute of Media Arts,
Mumbai. I would like to end my session by giving out something very, very pertinent for you all to understand. That is the lines said by Alan Harrington. What did he say? Public relations specialists make flower arrangements of the facts, placing them so that the wilted and the less attractive petals are hidden by sturdy blooms. If you remember, when I was describing the job of a PR specialist, I was telling you कि facts को कितनी सुंदर तरीके से रखना और जो नॉट सो प्लेजेंट फैक्ट्स हैं उनको लिटिल बिट ऑफ कैमोफ्लैजिंग के बाद, थोड़ा बहुत छिपाने के बाद, उनको ख़त्म ना करते हुए ज़रा सा हाइड करते हुए दिखाना दुनिया को एक कैमोफ्लैजिंग के तौर पे इज़ द आर्ट that is best known by a public relations specialist. On this progressive thought, I would end my today's session, hoping, rather believing that you all loved my session. For many more such sessions, stay connected with us. Till then, bye-bye. Thank you. God bless.